2018 फिजिक्स भी बड़ा सिंपल था. इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक मेटल इज प्लेस बिटवीन टू प्लेसेस एट अ कैपेसिटी, द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. तो आंसर हो जाएगा इंक्रीज. लेट एक्स बी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैव एन नॉट न्यूक्लियाई. द टाइम रिक्वायर्ड टू decay this element to one half of the initial number and not is not half life. डेफिनेशन भी बताई थी बच्चों मैंने. और चैप्टर 20 की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है बच्चों. मैंने एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स एंटी पार्टिकल पोजीशन come close enough to each other, they completely convert into radiation energy in the form of photon. This process is called annihilation of matter. Which of following phenomena represent the wave nature of light? तो interference of light. फिर है वह process is shown in the graph between pressure and volume, तो isobaric. फिर है equation of kinetics are violently when the accelerated it's decreasing. फिर है simple harmonic motion, a particle is accelerating in such a way that its total energy remain conserved when the particle reaches the two extreme position. Its potential energy at extreme position becomes maximum. फिर है if a constant current is flowing through a coil, then flux through that coil will become constant. In such of arrangement, this electromagnetic force induction सेल्फ इंडक्टेंस. अब बेटा इन्होंने आंसर की में बहुत गलतियाँ की थी. लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज इज़ यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस. फिर है इफ़ अ कार कोलाइड विद, ये सवाल बहुत आता है. हाउस फ्लाई, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द हाउस फ्लाई? सेम हैज़ द कार एक्सपीरियंस बाय द हाउस फ्लाई. न्यूटन थर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. In an electromagnetic spectrum of radiation, the wavelength spectrum, the visible region, तो ये है 400 से 700 नैनोमीटर. The efficiency of Carnot engine working between 177 and 77 will be. तो भाई T1 में 273 प्लस करो 450 हो जाएगा. ऊपर T1 माइनस T2 यानी 100 इंटू 100, नीचे 450. जब करेंगे तो आंसर आएगा 22.22. इसके बाद बच्चे एक और बड़ी औसम बात, अच्छा सवाल है कि प्रोसेस इन विच लाइट बेंड्स अराउंड एन ऑब्स्टिकल, तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इन फ्री स्टेट द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, ये भी हम पढ़ चुके हैं. Two forces equal in magnitude but opposite in direction or not acting along the same constitute a couple. The magnetic moment of this couple is of course zero होगा भाई. There are different types of wave that exist in universe. Which of following do not need any material to travel? तो electromagnetic waves हो जाएगा. Process of natural decay of some heavy nucleus is because of the radioactive phenomena. Here in electronic circuit, p-n junction diode is used to convert alternating current into direct current. This process is called rectification. During the radioactivity of a nucleus, beta emission takes place along with daughter nuclei. Because of this beta particle emission, a mass number a of particle, तो भाई मास नंबर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा रिमेन कांस्टेंट. फिर एटॉमिक नंबर z ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन. इफ़ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर हैविंग लेंथ l, द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल बी. देखो भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो एरिया इंक्रीज करेंगे तो भाई रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी. फिर बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट इज एग्जाम्पल ऑफ कोर्स थर्मो एक्सपेंशन.
2018 का ही क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 177 एंड 77 डिग्री विल बी। तो देखो E इक्वल टू T1 माइनस T2, 177 और 77 का डिफरेंस 100, और T1 में हमेशा हम 273 प्लस करते हैं 450। आंसर इसका आ जाएगा 22.22%। फिर कह रहे हैं प्रोसेस इन विच लाइन बेंड अराउंड एन ऑब्स्टिकल डायफ्रैक्शन कहलाता है। इन फ्री स्टेट द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट। टू फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन और नेट एक्टिंग अलोंग द सेम कॉन्स्टिट्यूट couple, movement of this couple will 0. There are more types of waves that exist in the universe. Which of following wave do not need any material? तो electromagnetic, process of natural decay of some heavy nucleus because of radioactive phenomena. In electromagnetic electronic circuit, a PN junction diode is used to convert alternating current into direct current. ये रेक्टिफिकेशन कहलाता है। ड्यूरिंग डिके ऑफ न्यूक्लियस ZA बीटा एमिशन टेक प्लेस अलॉन्ग विद डॉटर न्यूक्लियाई। बिकॉज ऑफ दिस बीटा एमिशन द पार्टिकल A, ऑफ कोर्स मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटॉमिक नंबर Z ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट प्रोटॉन। इफ वी इंक्रीज एरिया ऑफ करंट सेक्शन लेंथ इस रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स डिक्रीजेस। और बायोमेटालिक थर्मोस्टेट इज इन थर्मल एक्सपेंशन में यूज़ होता है बच्चों। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन ऑफ एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज एक्सप्रेस एज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेव नेचर ऑफ द मेटल। फिर if constant temperature condition are applied to a gas container, then volume of the mass of that gas tend to increase by increase the weight. A solar day is the time interval between two successive appearance of the sun overhead. The time that is referred to rotation of earth about its axis is called. तो इसको क्या कहते हैं बच्चे? सोलर डे। फिर इन प्योर सेमी कंडक्टर मटेरियल सम इम्प्योरिटीज आर एडेड टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेमी कंडक्टर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। फिर लेट बी द मैग्नेटिक फील्ड एंड अ क्रॉस सेक्शन लेंथ इज मूव्ड अक्रॉस द फील्ड ड्यू टू एक्टिविटी। अ पोटेंशियल डिफरेंस अपेयर अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज मोशनल EMF। फिर इफ़ द सनलाइट इंसिडेंट ऑन द फोटो सेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ लाइट इन डेंसिटी। फिर इफ़ इन सर्किट 2 एम्पेयर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन 10 मिनट्स, हाउ मच विल थ्रो द सर्किट। अब देखो Q इक्वल टू IT होता है, I2 दिया है, 10 मिनट है, 2 × 60। आंसर हो जाएगा 1200 कूलम बच्चों। 2018 फिज़िक्स का जो वाहिद मुश्किल सवाल था वो ये था, साइक्लिक मूविंग टूवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एट T इक्वल टू 0 ही हैज ट्रेवल 5 मीटर, मूव्स टूवर्ड द राइट एट 15 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स पोजीशन एट T इक्वल टू 2। तो मेरे भाई फिर हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें साइक्लेट की पोजीशन चाहिए T इक्वल टू 2 सेकेंड पे। हम क्या करेंगे, एक ख़ास शॉर्ट ट्रिक होती है बच्चों मेरी ऐसे सवालों के लिए। जो इनिशियल डिस्टेंस है ना, कितना कह रहे हैं भाई, शुरू में जो उसने तय किया था, ठीक है, मूव्स टूवर्ड्स T ट्रेवल 5 मीटर। इसको जो है मैं मान लूँगा x0। VI मेरा 15 है, टाइम 2 सेकेंड पूछा है, प्लस हाफ T² एक्सेलरेशन उन्होंने 4 दिया हुआ है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई ये फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। 15 2 सा 30, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 8, 5 + 30 + 8 43 मीटर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 43 मीटर। अब बच्चों इन्होंने कुछ मिस्टेक की थी,
जो मैंने यहाँ पे करेक्ट की हुई है। NTS बहुत मिस्टेक करता था। 5 की 15 मीटर पर सेकेंड है, एंड ऑफ कोर्स एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकेंड है, तो ये क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। एनी हाउ आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी 43।